Good morning, student. In class 9, today I am going to start the third chapter of chemistry, atoms and molecules. Dear students, in previous chapter already you have studied the definition of matter. So, first of all, we will see the index of this chapter. It means in this chapter you have to study the following points. First, introduction. Second, Dalton's theory and the laws of chemical combination. Atoms. Next, molecules and ions. Fifth point, chemical formula of compounds. Sixth one is a molecular mass and formula unit mass. And seventh is the mole concept. So these content you have to study in third chapter, atom and molecule. So first of all, we will see what do we mean by atoms and molecules. Before starting the definition of atoms and molecules, I am telling about the matter. Everything around us is made up of matter. Matter has mass and occupies space. All matter is composed of basic element that cannot be broken down to substance with different chemical or physical properties. These are molecules and atoms. स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है एंड दिस स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एटम्स. So what do you mean by atoms? Atom is a very smallest particle which cannot exist in free state and it can participate in chemical reaction. Here you are looking the H2O. This is a water molecule and here the atom of water molecule. Next one is the when we will see about the definition. So the atoms are so small that they are not visible by naked eyes. Fire, air, water and earth also have their individual atoms which are connected with each other. Students, air, water, fire, these all are matter. Why matter? Because it is made up of very smallest particle and these smallest particles are very smallest. That's why we are unable to see by naked eyes. After atoms, a term for slightly bigger entities was coined. That term is known as molecules. जब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सो व्हेन टू एटम्स इज कंबाइंड टू ईच अदर देन इट विल फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल्स. So these molecule is also smallest particle but it can exist in free state and it cannot participate in chemical reaction. बेटा molecules जो है वो एटम्स से मिलके बना होता है. जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा. एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. Next one we will see the atom. All matter if divided into its smallest possible part, that part would be known as atoms or indivisible. यहाँ पे एक साइंटिस्ट है डेमोक्राइटिस. ये डेमोक्राइटिस ने ही सबसे पहले एटम वर्ड यूज़ किया और इन्होंने ही बताया कि जितने भी मैटर हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं जिनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही उन्होंने एटम्स कहा और इट इज़ अ इंडिविजिबल. सो हियर वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहाँ पे आपको केमिकल लॉ टू लॉज पढ़ना है. फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and second one is the law of constant proportion. So first of all we will see the law of conservation of mass. So this law was given by Antony Lavoisier in 1774. So dear student, this law, the law of conservation of mass, states that the mass of closed system will remain constant in a chemical reaction. In other words,
mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. And this law was given by Antony Lavoisier in 1789. Students, डिफरेंट बुक में जो डेट है वो अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 1789 है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसमें वो मैटर का बना होता है और जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होता है. तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है, इट मीन्स कोई भी जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर जो है उसका जो मास है वो कंजर्व रहता है. इट मीन्स इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और आफ्टर द रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. सो इन टोटल reaction, in total chemical reaction, the quantity of reactant is always be equal to the quantity of product. It means reactant की quantity में और product की quantity में कोई difference नहीं आता. मतलब ना तो जो reactant जब react करते हैं तो ना तो उनकी quantity कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वन, इसी को हम समझेंगे प्रैक्टिकली के थ्रू, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट स्टेट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड. एक्टिविटी हम देखते हैं यहाँ पे. टेक अ सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क. आपने कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एन इग्निशन ट्यूब. आपने देखा यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हमने Na2SO4 सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट इग्निशन ट्यूब है जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है. नाउ हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय अ थ्रेड एंड पॉट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस. अब सबसे पहले हम इस फ्लास्क को बैलेंस के ऊपर रखेंगे. देन टिल्ट द फ्लास्क, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म. हम देखते हैं कि जैसे ही बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, वाइट कलर का बेरियम सल्फेट बनता है. देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन. It will be seen that some of the masses of the reactant and product remains unchanged. Dear student, इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने बेरियम क्लोराइड लिया और सोडियम सल्फेट लिया, दोनों का हमने वेट कर लिया, दोनों की जो भी क्वांटिटी थी उसको हमने x माना. अब इसको ही जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है. आफ्टर दैट हम इसको भी मेज़र करते हैं तो आप देख रहे हैं बिफोर केमिकल रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज अ 300.23 ग्राम, एंड आफ्टर द रिएक्शन बोथ द प्रोडक्ट्स क्वांटिटी इज ऑल्सो इक्वल 300.23 ग्राम. सो from these law of conservation of mass, it is clear that mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. So dear student, now I will discuss the second law in my next class. Thank you.